Dear students, welcome to A1 Blom Education YouTube channel. ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ A1 ବ୍ଲମ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛ, ଡୋଣ୍ଟ ଫରଗେଟ୍ ଟୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୟର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ A1 ବ୍ଲମ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ତୁମ ପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ପେସେଜ୍ 1ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପେସେଜ୍ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଟେକ୍ସଟରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ବାୟୋଗ୍ରାଫି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି। ତାହେଲେ ବାୟୋଗ୍ରାଫି କ'ଣ ଆଉ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି କ'ଣ? ପିଲାମାନେ, ବାୟୋଗ୍ରାଫି ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ତୁମ ବିଷୟରେ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଲେଖିବି। ଇଫ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ରାଇଟ୍ ଆବାଉଟ୍ ସମୱନ୍ସ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟୋରି, ଏ ହେଉଛି ଜୀବନୀ। କ'ଣ ଜୀବନୀ କୁହାଯିବ ବାୟୋଗ୍ରାଫିକୁ। ଆଉ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ଯଦି ମୁଁ ମୋ ବିଷୟରେ ଲେଖୁଛି ତାକୁ କହିବା କ'ଣ ନା ଆତ୍ମଜୀବନୀ ହେଲା। ଆଉ ବାୟୋଗ୍ରାଫି, ଇଫ୍ ଆଇ ରାଇଟ୍ ଆବାଉଟ୍ ଅଦର୍ସ, ଯଦି ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖୁଛି, ଅନ୍ୟ କାହାରି ଜୀବନ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି, ସିଏ ହେବ ଜୀବନୀ। ଆଉ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ନିଜ ବିଷୟରେ ଲେଖିବି। ଯେମିତି ଆମେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି କ'ଣ ନା ମାଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଟ୍ରୁଥ୍। ମାଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ହେଲା। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ହେଉଛି ମାଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଟ୍ରୁଥ୍। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏ ବାୟୋଗ୍ରାଫି ଇଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍ ଏ ପର୍ସନ୍। ତାହେଲେ ଜୀବନୀ ହେଉଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ, ଯେଉଁଟାକି କେହି ଜଣେ ଲେଖିବ। ଆନ୍ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ଇଜ୍ ଦ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟୋରି ରିଟେନ୍ ବାଇ ଦ ପର୍ସନ୍ ହିମସେଲ୍ଫ। ତାହେଲେ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ହେଉଛି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ଯଦି ଲେଖିଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ନୁହେଁ କି? ଆଉ ଜୀବନୀ କହିବ ଯେଉଁଟା ବାୟୋଗ୍ରାଫି, ଯେଉଁଟା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖିଥିବ ହେଲା। ଏ ବାୟୋଗ୍ରାଫି ଇଜ୍ ଦ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍ ଏ ପର୍ସନ୍ ରିଟେନ୍ ବାଇ ସମୱନ୍ ଏଲ୍ସ। ଆନ୍ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ଇଜ୍ ଦ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟୋରି ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ରିଟେନ୍ ବାଇ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେମ୍ ପର୍ସନ୍ ହିମସେଲ୍ଫ, ନୁହେଁ କି? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। Is this lesson a autobiography or an is this lesson a biography or an autobiography? Support your answer with reasons. ତ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତ କହିସାରିଛି, ଏ ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମାଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ରୁ ଆସିଥିବା ବିଷୟ। ତାହେଲେ ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି, ନୁହେଁ କି? କାରଣ ଏ ହେଉଛି ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇଛି କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ନା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ମାଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ, ବିକଜ୍ ଇଟ୍ ହାଜ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଗାନ୍ଧୀଜିଜ୍ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ମାଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ with truth. তাহলে গান্ধীজীଙ୍କର আত্মজীবনী মাই এক্সপেরিমেন্ট উইথ ট্রুথ্রু আসিছি এই বিষয়টি। সো ইট ইজ অ্যান অটোবায়োগ্রাফি। Was Gandhi good at studies? How will you support your answer? ଗାନ୍ଧୀଜୀ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ କି? ନା, ଗାନ୍ଧୀଜୀ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଏକ୍ସେପସନାଲି ଗୁଡ୍ ଆଟ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍, ହି ୱାଜ୍ ଆନ୍ ଆଭରେଜ୍। ସେ ଆଭରେଜ୍ରେ ଥିଲେ, ବଟ୍ ସିନସିୟର୍ ଆଣ୍ଡ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କ'ଣ ଥିଲେ? ସିନସିୟର୍ ଥିଲେ ଏବଂ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ନୁହେଁ କି? କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ, ହି ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଗୁଡ୍ ଆଟ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍। ପିଲାମାନେ, ଦୁଇଟା ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ମୁଁ କହିଛି, ଗୁଡ୍ ଆଉ ବ୍ୟାଡ୍ ପରେ ସବୁବେଳେ ଦୁଇଟା ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ମନେ ପକାଇ ପାରିବ କେଉଁ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଦୁଇଟା ନା ଆଟ୍ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ଭୁଲିବନି ହେଲା। ଗୁଡ୍ ବ୍ୟାଡ୍ ପରେ ଆଟ୍ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଦେଖିଲ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ୱାଜ୍ ଗାନ୍ଧୀ ଗୁଡ୍ ଆଟ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍? ହାଉ ୱିଲ୍ ୟୁ ସପୋର୍ଟ ୟର୍ ଆନ୍ସର୍? ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଷ୍ଟଡିଜ୍ରେ ଆଭରେଜ୍ ଥିଲେ, ହି ୱାଜ୍ ଆନ୍ ଆଭରେଜ୍ ବଟ୍ ସିନସିୟର୍ ଆଣ୍ଡ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଲା। ଲେଟ୍ସ ଗो ଟୁ ଦ ନେକ୍ସଟ। ଡିଡ୍ ଦ ଟିଚର୍ ଲାଇକ୍ ହିମ୍? ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଭଲ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦ ଟିଚର୍ସ ଲାଇକ୍ ହିମ୍ ବିକଜ୍ ହି ୱାଜ୍ ଅନେଷ୍ଟ। ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ଅନେଷ୍ଟ ଥିଲେ ଆଉ ଡିସିପ୍ଲିନେଡ଼ ଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ଗାନ୍ଧୀ ଥିଲେ ଜଣେ ଅନେଷ୍ଟ, ଡିସିପ୍ଲିନେଡ଼ ଏବଂ ୱେଲ୍ ବିହେଭ୍ଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ଅଲ୍ ଦ ଟିଚର୍ସ ଲାଇକ୍ଡ ହିମ୍। କ'ଣ ପାଇଁ?
ना ही वाज ऑनेस्ट, डिसिप्लिनेड, वेल बिहेव्ड। ताले तीनोटी वर्ड को मन रखिए पिला माने कौन गांधीजी किपरि थिले ना गांधीजी वाज ऑनेस्ट, डिसिप्लिनेड एंड वेल बिहेव्ड। दैट्स व्हाई ऑल द टीचर्स लाइक्ड हिम। तेणु से प्रत्येक शिक्षक समस्त शिक्षक गांधीजी को पसंद करथिले। व्हाट सॉर्ट ऑफ सर्टिफिकेट्स वी आर सेंट टू हिज पेरेंट्स। ताले गांधीजी को बापा माँ निकट को क्यों प्रकार सर्टिफिकेट पठे दि जाउथिला वर्षर शेष में रिगार्डिंग हिज कंडक्ट। ताले तांकर आचरण विषय और प्रोग्रेस सर्टिफिकेट नुहे कि कौन कंडक्ट एंड प्रोग्रेस सर्टिफिकेट्स वी आर सेंट टू हिज पेरेंट्स। ताले आम दुईटा वर्ड मन रखा कंडक्ट गोटे आ गोटे हूँ प्रोग्रेस है। सर्टिफिकेट्स रिगार्डिंग हिज कंडक्ट एंड प्रोग्रेस वी आर सेंट टू हिज पेरेंट्स। व्हेन डिड ही विन प्राइजेस। ताले गांधीजी जिते बड़े 5th और 6th स्टैंडर्ड पढ़ुते से स्कॉलरशिप पाइथिले किंतु ये जो स्कॉलरशिप पाइबा सहित से प्राइज भी पाउथिले। ही वन प्राइजेस जिते विद्यालय में पाठ पढ़ुते व्हाइल ही वाज स्टडीइंग इन स्कूल ड्यूरिंग स्कूल डेज। व्हिच स्टैंडर्ड्स डिड ही गेट स्कॉलरशिप्स। गांधीजी को जिते बड़े गांधीजी 5th और 6th स्टैंडर्ड पढ़ुते से गांधीजी स्कॉलरशिप पाइथिले है मन रहा। नेक्स्ट को जीवा व्हाट वेयर द अमाउंट्स ऑफ हिज स्कॉलरशिप। ताले गांधीजी केते टंका पाइथिले स्कॉलरशिप रे। गांधीजी को 4 ରୁ 10 टंका मिलता पर मंथ है। द स्कॉलरशिप अमाउंट्स आर 4 rupees and 10 rupees। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। हु डिड ही थैंक मोर फॉर हिज स्कॉलरशिप्स, हिमसेल्फ और हिज गुड लक। ताले गांधीजी जिते स्कॉलरशिप पाइथिले से क्या धन्यवाद देते निज को धन्यवाद देते ना भाग्य को धन्यवाद देते से लक को धन्यवाद देते है। ही थैंक्ड हिज लक गुड लक है। नेक्स्ट को जीवा व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी एज ए पर्सन। ताले गांधी जड़े व्यक्ति बोली जड़े यपरी कौ प्रकार व्यक्ति थे। गांधी जड़े क्यों प्रकार व्यक्ति थे। गांधीजी वाज ऑनेस्ट, ट्रुथफुल, शाय, डिसिप्लिनेड एंड सेंसिटिव। ताले हमको केते गुडे वर्ड मन रखा पड़ो ऑनेस्ट, ट्रुथफुल, शाय, डिसिप्लिनेड एंड सेंसिटिव। ताले गांधीजी क्यों प्रकार व्यक्तित्व थे ना ऑनेस्ट, ट्रुथफुल, शाय, डिसिप्लिनेड एंड सेंसिटिव। नेक्स्ट को जीवा व्हाट वाज ही वेरी मच केयरफुल अबाउट। ताले गांधीजी सब बेले कहा क्यों जिनस प्रति सचेतन रोते। गांधीजी सब बेले निज चरित्र को कौन निष्कलंक रखापी सचेतन रोते है। ही वाज ऑलवेज केयरफुल अबाउट हिज कैरेक्टर है। कैरेक्टर हाउ डिड ही रिएक्ट व्हेन ब्लेम्ड। गांधीजी जिते बड़े निंदित होते से क्यों प्रकार प्रतिक्रिया जात होता। गभीर जंत्रणा लगी। ही फेल्ट डीपली हर्ट है। ही फेल्ट डीपली हर्ट एंड क्राइड व्हेन ब्लेम्ड एवं कांदी थिले जिते से निंदित होते। व्हाट वाज मोर इंपोर्टेंट फॉर गांधी। ताले गांधीजी सब मुख्य जिनस कौन थी विनिंग प्राइजेस और बिल्डिंग कैरेक्टर। ताले करेक्ट आंसर होची बिल्डिंग कैरेक्टर है। बिल्डिंग कैरेक्टर। व्हाई डिड ही गेट फिजिकल पनिशमेंट। गांधीजी को कहीं फिजिकल पनिशमेंट दिया बिकज ही कुड नॉट डू हिज एक्सरसाइज करेक्टली। कहीं से एक्सरसाइज सठिक भाव में कर नथिले सेथिपे ताको कॉर्पोरल पनिशमेंट बा फिजिकल पनिशमेंट गांधीजी को दिया जाइथिला है। ताले गांधीजी जिते बड़े राजकोट हाई स्कूल पाठ पढ़ुते से प्रधान शिक्षक किए थे ना दराबजी इदुजी जिमी बा मिस्टर जिमी। दराबजी इदुजी जिमी प्रधान शिक्षक थे जे कि कौन जिम्नास्टिक आउ कौन क्रिकेट को कंपलसरी करते। जिम्नास्टिक्स आउ कौन क्रिकेट इट वाज कंपलसरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स। किंतु गांधीजी कौन अनफॉर्चुनेटली से गिवअप करने एबेंडन रही चाहूले बापांकर सेवा करने चाहूले है। किंतु मिस्टर जिमी तांको परमिशन दे नथिले है। नेक्स्ट को जीवा
Was he popular? Why? Gandhiji popular thile? No, he was not popular because he was shy. Gandhiji shy thile ଆଉ avoided mixing ସେ ସବୁବେଳେ ଏଲୋଫନେସ୍ ତାଙ୍କର ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏଲୋଫନେସ୍ ଥିଲା ଏଲୋଫନେସ୍ ମାନେ କ'ଣ ରେ ତାହେଲେ ଲଜ୍ଜା ହେଲା ଲଜ୍ଜା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଦୂରେଇ ରହିବା ହେଲା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଏଲୋଫନେସ୍ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ସେଥିପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏତେ ପପୁଲାର ନଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ What was made compulsory for upper standard boys? ताले जिम्नास्टिक्स आउ क्रिकेट नुह कि ये दुईटा कंपलसरी थिला अपर क्लास पिला मान को पई I disliked both. What does both refer to? ताले I dislike I किए ना महात्मा गांधी उभय क्रिकेट एवं जिम्नास्टिक को पसंद कर नथिले हैला What was the reason for Gandhi's dislike for cricket and gymnastics? ताले गांधीजी क्रिकेट और जिम्नास्टिक को घृणा कर मुख्य कारण कौन थिला कहीं गांधी ही हैड नो इंटरेस्ट इन गेम्स गांधीजी खेल आग्रह नथिला वाज द हेडमास्टर ए लवर ऑफ गेम्स हेडमास्टर जो गेम रो लवर थिले कि निश्चित भाव में यस द हेडमास्टर वाज ए लवर ऑफ गेम्स दोराबजी इदुजी जिमी What false idea did Gandhi have about games? ताले गांधीजी गोटे भ्रांत धारणा मन में उपजी खेल उपरे कौन थिला से भ्रांत धारणा गेम्स हार्ड नथिंग टू डू विथ एजुकेशन ताले खेलर शिक्षा सहित कौन संपर्क ना गांधीजी एपरी एक विश्वास एक फलसुड पड़ जाते एपर अंधविश्वास पड़ जाते जे खेलर शिक्षा सहित कौन संपर्क ना बोली से कहते भावुले Gandhiji falsely believed that games had nothing to do with education. What were his views on games later? ताले खेल उपर गांधीजी व्यू कौन थिला later Gandhi realized that games and physical exercises ताले games and physical exercises are important parts of education. ताले गेम एवं physical exercise education गोटे पार्ट पेसेज 3 क्वेश्चन देखिए व्हाट वाज द स्पेशल रीजन फॉर गांधीज डिसलाइक फॉर जिम्नास्टिक्स ताले गांधीजी जिम्नास्टिक को पसंद न करिवार मुख्य कारण कौन थिला बिकॉज इट प्रिवेंटेड हिम फॉर सर्विंग हिज सिक फादर कहीं ना तांको बापा रगिणा बापा को सेवा करने से समय पाए नथिले सेथिपई से जिम्नास्टिक को पसंद कर नथिले गांधी डिसलाइक जिम्नास्टिक्स बिकॉज इट प्रिवेंटेड हिम प्रिवेंटेड कहले स्टॉप्ड है ना स्टॉप्ड हिम फ्रॉम सर्विंग हिज सिक फादर कंपल्सरी एक्सरसाइज केम डायरेक्टली इन द वे ऑफ हिज सर्विस व्हाट वाज द सर्विस ताले गांधीजी मत बाध्यतामूलक एक्सरसाइज आसी जाऊला कौटी तांकर सेबारे को सेबारे सेबार अर्थ क्या बुझाऊँ ना बापा सेवा अटेंडिंग टू सिक फादर द सर्विस वाज नर्सिंग एंड अटेंडिंग टू हिज सिक फादर तांकर जो रगिण बापा सेवा करिबारे तांको एही हैला एही एक्सरसाइज तांको मिल जाए बोली गांधीजी धारणा थिला डिड द हेडमास्टर ग्रांट हिज रिक्वेस्ट व्हाई गांधीजी जो अनुरोध प्रधान शिक्षक मंजूर करथिले कि कहीं नो द हेडमास्टर डिड नॉट ग्रांट हिज रिक्वेस्ट प्रधान शिक्षक गांधीजी अनुरोध को रक्षा करनथिले कारण फिजिकल एक्सरसाइज कंपलसरी थिला बिकॉज फिजिकल एक्सरसाइज वाज कंपलसरी व्हाई डिड ही गेट टू स्कूल लेट ताले गांधीजी विद्यालय को विलंब होता कहीं विद्यालय को आसवे कहीं गांधीजी पाखे वॉच भी नाला एवं क्लाउड ठकी देता बिकॉज ही डिड नॉट हैव ए वॉच एज वेल एज द क्लाउड डिसीव्ड हिम नहीं कि आम एमती भी लिखिपर ना ये कौन लिखिपर ही गॉट लेट बिकॉज ही कुड नॉट नो द करेक्ट टाइम ड्यू टू क्लाउडी वेदर आउ पाखे वॉच भी नाला नुह कि क्लाउड डिसीव्ड हिम मेघमंडल ठकी देला केमिति हाउ क्लाउड हिड द सन कहीं ना मेघ सूर्य को लुचई देला सो ही थॉट इट वाज अर्लियर देन द एक्चुअल टाइम तेणु से कौन भाविले
सो ही थॉट इट वाज अर्लियर देन तेणु ताको भाविले से एक्चुअल टाइम रो अर्लियर से पहुँची जे भाविले बट अनफॉर्चुनेटली इट वाज लेट फॉर हिम. Did the headmaster believe? Did the headmaster believe what he said? जहाँ गांधी कही हेडमास्टर को से विश्वास कले कि ना से विश्वास कर नथिले. नो द हेडमास्टर डिड नॉट बिलीव हिम. हाउ मच वाज ही फाइन? गांधी जी तांको केते फाइन करथिले ना 1 ରୁ 2 आनास गांधी जी को फाइन करथिले हेडमास्टर दराबजी इदुजी जिमी. व्हाट वाज ही एक्यूज्ड ऑफ? वाज द एक्यूजिशन प्रॉपर? ताले गांधी जी को केउथिरे दोषारोप करा जायतिला एवं से दोषारोप करिबा ठीक थिला कि ही वाज एक्यूज्ड ऑफ टेलिंग लाइज? ताले तांको मिछ कहिबारे दोषारोप करा जायतिला. नो द एक्यूजेशन वाज नॉट प्रॉपर एवं तांकर से दोषारोप त्रुटि थिला. से सतरे दोषारोप से निर्दोष थिले हैला. व्हाट पेन्ड हिम सो मच? तांको केउ जंत्रणा बहुत देइथिला? केउथि पई तांको अधिक जंत्रणा भोगिबा को पड़िथिला? द फॉल्स चार्ज ऑफ लाइंग. ताले तांको जो मिछ अभियोग रे मिछ त्रुटि रे जो दोषारोप कराइथिला मिछ कहिबा पई लाइंग. सो इट पेन्ड हिम वेरी मच हैला. What lesson did he learn from it? He learned that a truthful person should always be careful and punctual. ताले गांधी जी एथुर कोन शिखले? जने सत्यवादी मनीष जने सावधान रहिबो एवं समयानुवर्ती हवा दरकार. अकॉर्डिंग टू गांधी जी को मतरे हैला. द ट्रूथफुल पर्सन शुड बी केयरफुल एंड पंक्चुअल. वाज ही केयरलेस इन स्कूल लेटर? तापर विद्यालय से पुणी केयरलेस हेले कि? नो, तापर से केयरलेस हे नथिले. नो, ही वाज नेवर केयरलेस इन स्कूल लेटर हैला. डिड ही रियली हाव टू पे द फाइन? गांधी जी वास्तव में फाइन देते कि ना देवा को पड़ नाला है. नो, ही डिड नॉट रियली हाव टू पे द फाइन. हाउ वाज द फाइन एग्जेम्प्टेड इन द एंड? शेष में गांधी जी फाइन रू गांधी जी को मुक्त कर केमिति? द फाइन वाज एग्जेम्प्टेड आफ्टर हिज फादर रॉट ए लेटर एक्सप्लेनिंग द सिचुएशन. कहीं बापा तापर गोटे चिट्ठी लिखी से सिचुएशन विषय है. तापर गांधी जी को एक्जेम्प्ट कराइला, एक्जेम्प्टेड कर दिया से फाइन रू है. 5 को आसवा 5 नंबर पेसेज. व्हाट वाज द अदर नेग्लेक्ट गांधी टॉकेड अबाउट? ताले गांधी जी तांकर अन्य गोटे अवहेला विषय कहते. से अवहेलाटी कौन? जोटा कि से अवहेला कले आम जीवन में कौन भाव आम एजुकेशन इम्परफेक्ट अच्छी कहवा ना. गांधी जी हैंड रईटिंग भल नाला. सी हूँ बैड हैंड रईटिंग. बैड हैंड रईटिंग अर्थ हूँ गांधी जी मत इम्परफेक्ट एजुकेशन. व्हाट वाज हिज अर्लियर नोशन ऑन हैंड रईटिंग? ताले गांधी जी मत हैंड रईटिंग उपर प्रथम धारणा कौन थिला? गोटे पिला को हैंड रईटिंग शिखा पूर्व आम ड्रॉइंग शिखेबा दरकार है. अर्लियर ही थॉट गुड हैंड रईटिंग वाज नॉट नेसेसरी फॉर एजुकेशन. गांधी जी प्रथमतः प्राथमिक अवस्था कौन भाई ना गुड हैंड रईटिंग एजुकेशन गोटे पार्ट नुहे बोली यहीपरी गोटे मन में भ्रांत धारणा आसीला. किंतु कौन गांधी जी मत हैंड रईटिंग शिखा पूर्व गोटे पिला को ड्रॉइंग शिखा दरकार. गोटे पिला ड्रॉइंग विषय जाना दरकार सो दैट तांकर हैंड रईटिंग बहुत सुंदर हो पार. व्हेन एंड वेयर डिड ही रियलाइज दैट हिज नोशंस वर रॉन्ग? गांधी जी केते बुझिले जे तांकर धारणा भूल बोली. एंड व्हाट मेड हिम थिंक सो? जिते गांधी जी साउथ आफ्रिका जाते व्हेन गांधी वेंट टू साउथ आफ्रिका एट दैट टाइम से समय से देखिले वकिल मानकर है एवं क्लर्क मानकर ब्यूटीफुल हैंड रईटिंग देखी है. तापर से रिपेंट करते अनुताप करते है. व्हाट वेर हिज व्यूज ऑन हैंड रईटिंग? गांधी जी मत ही बिलीव्ड दैट हैंड रईटिंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन. तो हैंड रईटिंग हूँ शिक्षार एक अपरिहार्य अंश. हैंड रईटिंग जदि आमर सुंदर नुह ताले गांधी जी मत आम कौन आमर एजुकेशन हूँ इम्परफेक्ट, परफेक्ट नुह है. व्हाट वाज हिज एडवाइस टू यंग मैन एंड वुमेन इन दिस रिगार्ड? ताले एथिरे पुरुष एवं महिला मान गांधी जी कौन उपदेश देइछन्ति? जे सुंदर हैंड रईटिंग प्रारंभिक अवस्था शिक्षा गांधी कहते. ही एडवाइज्ड यंग मेन एंड वुमेन टू कल्टिवेट गुड हैंड रईटिंग फ्रॉम द बिगिनिंग. व्हाई डिड गांधी कंसीडर संस्कृत हार्डर देन जियोमेट्री? कहीं संस्कृत को मुखस्थ करने को पड़ूला
जियोमेट्री को मुखस्त करने को पड़ू नाला है। गांधी कन्सिडर संस्कृत हार्डर देन जियोमेट्री बिकज संस्कृत ग्रामर वाज डिफिकल्ट। गांधीजी मत संस्कृत ग्रामर बहुत डिफिकल्ट थिला, से गांधीजी संस्कृत को कौन बहुत डिफिकल्ट कहते जियोमेट्री ठारू है। शेष प्रश्न देखा, व्हिच वाज द संस्कृत इंट्रोड्यूस्ड इन। जानिच गांधीजी संस्कृत शिक्षक थे कृष्णा शंकर पांड्या है। व्हिच क्लास वाज संस्कृत इंट्रोड्यूस इन। संस्कृत वाज इंट्रोड्यूस इन 4th क्लास। ताले गांधीजी समय 4th श्रेणी संस्कृत पढ़ा जाउथिला। So my dear students, if you come to this channel firstly, don't forget to like, share and subscribe. This is your channel A1 Blom Education. This much for today, and I will explaining the remaining part of your text what I have left. So God bless you. Thanks a lot.